आसनसोल नगर निगम में आज एक बोर्ड मीटिंग हुई जहां मेयर विधान उपाध्याय चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक सहित सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। यहां आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके निराकरण को लेकर चर्चा की गई। इस संदर्भ में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज की बैठक में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर चर्चा हुई और कैसे उसका हल निकाला जाए इस पर विचार विमर्श किया गया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आज की बैठक का भाजपा पार्षदों द्वारा बाइकाट किया गया, इस पर मेयर ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज की बैठक का मुद्दा आसनसोल में पानी की समस्या के समाधान का था, आसनसोल के विकास का था। ऐसी जरूरी बैठक का बाइकाट कर भाजपा ने बेहद गलत संदेश दिया। इससे साबित होता है कि आसनसोल के विकास को लेकर और आसनसोल की समस्याओं के समाधान को लेकर भाजपा गंभीर नहीं है। অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে আমাদের কাছে এমআইসি এবং অন্যান্য যে সমস্ত কর্পোরেশনে আরও ফান্ডের ব্যাপার নিয়ে যে সমস্তগুলো ছিল সেইগুলোর ব্যাপার নিয়ে আমরা ওনাদের চিঠি করেছিলাম। ওনারা আমাদের একটা ডেট এক্সটেনশন করে চিঠি দিয়েছে যে আগের মাসের মধ্যে সমস্ত কিছু কমপ্লিট করে নিতে, এবং ওনাদের মধ্যেও যে করসপন্ডিং আছে সেটা মেয়র সাহেব এবং আমাদের যারা ডেপুটি মেয়র বা আমাদের এমআইসি থাকবে তারা করে নেবে। আমি আজকের এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রথমে অনিমেষ দাসকে অনুরোধ করবো যে উনি কিছু বলুন। আজকে বোর্ড মিটিং যেমন আছে, সেকেন্ড বোর্ড মিটিং হলো, তো এখানে অনেক যেটা আমাদের ইশতেহারে ছিল, যেটা আমরা সবাই আসানসোল মানুষ যেটা গত বর্ষাতে আমরা ভোগ করেছি, সে গাড়ি নদী প্রশ্ন হয়েছিল, তো সেটা সব মাননীয় সদস্যরা জানতেন না। সেটা ওখানে জানিয়ে দেওয়া হলো যে আমাদের মেশিন অলরেডি 2 দিন হলো নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, আরও 3-4খানা মেশিন আসছে, সেটা পরপর নেমে যাচ্ছে, এবং আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি যাতে গতবারের মতন আমরা এই বছর এই অবস্থায় না পড়ি। আর কিছু যেহেতু ঈদ পরব আছে সামনে, আমাদের আসানসোলের কর্পোরেশনে প্রচুর পরিমাণে আমাদের সংখ্যালঘু ভাই বোন, দাদা দিদি, কাকা কাকুরা থাকেন, তো কিছু পাড়াতে জলের অসুবিধা রয়েছে, তো সেগুলো কিভাবে আমরা ঠিক করতে পারি সেটার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। বিজেপি সদস্য ভোট ছেড়ে মিটিং হচ্ছে জল আসানসোল নিয়ে মিটিং হচ্ছে, সেখানে অন্য কোনো কিছু নিয়ে প্রস্তাব, তো যেটা তারপর যে কোনো জিনিসে একটা বলতে গেলে চেয়ারম্যানের কাছে আগে থেকে নোটিশ জানাতে, 3 দিন আগে নোটিশ, সেটা করেনি, এবং ওরা ওদের ইচ্ছেই হচ্ছে যে কোনো একটা সুস্থ পরিবেশকে অসুস্থ করা, তো সেটারই ওনারা চেষ্টা করেছেন, নিজেরাই বেরিয়ে গেছেন। ওরা বলছে 10 দিনের মধ্যে না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন মানে আন্দোলনের জায়গায় আছে, কিন্তু একটা সঠিক জিনিসকে নিয়ে লড়তে হবে। আজকে মানুষ জল পাচ্ছে না, এটার জন্য লড়তে হবে। আজকে মানুষের রাস্তা নেই, সেটার জন্য লড়া উচিত। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, এটার জন্য লড়াই করা উচিত। কারণ মানুষকে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি, মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন, মানুষ কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য, তো সেগুলো নিয়ে লড়াই করুক না, আসুক না, একসাথে কাজ করি। আসানসোলকে সুন্দর কিভাবে করতে হবে, আসানসোলের মানুষ কিভাবে শান্তি পরিবেশে থাকবে, কিভাবে দুমুঠো ভাত খাবে, কিভাবে জল পাবে, সেটার জন্য একসাথে আসুন। আমরা সবসময় হাত বাড়িয়ে আছি। ওরা বলছে বিজেপি পার্টি, আমাদের পার্টিতে কোনো জল নেই, আমাদের পার্টিতে কোনো জল নেই, ওদের পার্টি ওয়ার্ডে, ওদের ওয়ার্ড আর আমাদের ওয়ার্ড বলে কোনো জিনিস নেই। আজকেও জিতেছে, তোর ওয়ার্ড নয়, যে কেউ জিততে পারে, এত নাম্বার ওয়ার্ড বলা উচিত, পার্সোনাল, ওর কারোর ওয়ার্ড পার্সোনাল নয়। আজকেও জিতেছে, কালকে হয়তো অন্য কেউ জিতবে, কারোর ওয়ার্ড থাকবে না। তো যেখানে প্রতিটি জায়গাতেই সমানভাবে, কারণ এটা আসানসোল কর্পোরেশন কোনো ওয়ার্ডকে বাদ দিই না, সে ওয়ার্ডটাও আসানসোলের মধ্যে, তা ওরাও আসানসোল কর্পোরেশনের মধ্যেই পড়ে, তো তাদেরও জলের ব্যবস্থা দেখা, রাস্তার ব্যবস্থা দেখা, যে কোনো জিনিস দেখা কিন্তু আসানসোল কর্পোরেশনের দায়িত্ব। তা আমরা নিশ্চিতভাবে সেটা দায়িত্ব নিয়েছি, আমরা করব। मीटिंग में क्या क्या बातें हुई सर? देखिए, बोर्ड का मीटिंग में अभी 106 वार्ड का जो काउंसिलर है वो अपना अपना जो प्रॉब्लम है वार्ड में उसका बारे में जानकारी दिया गया, और
हम लोग का जो कॉरपोरेशन का अगला महीना तक क्या क्या काम होगा नहीं होगा इस बारे में हम लोग का डिस्कशन हुआ। तो हम लोग कॉरपोरेशन का तरफ से सारे विषय में हम लोग नज़र रख रहे हैं, और ख़ास करके क्योंकि 3 तारीख को ईद है तो हम लोग यही कोशिश में हैं कि ये सब जगह में कोई दिक्कत ना हो, और सफाई पानी ये सब जगह में हो। और ज़्यादातर आपका जो काउंसिलर है वो अपना वार्ड में पिछला 2 महीना से वो काम किए हैं। वो अपना इलाका में जो भी तरक्की का काम हम लोग बोले हैं कि आपको लगता है कि करने होगा तो उसका लिस्ट आप लोग जल्दी से जल्दी जमा कीजिए। आज का जो बोर्ड मीटिंग हुआ उस बोर्ड मीटिंग में सामने हम लोग का ईद उल फित्र है। उस ईद उल फित्र के मौका पर जहाँ ईद का नमाज होता है उसका साफ़ सफाई बेहतर ढंग से हो। जहाँ पे लाइट की कमी है वहाँ पर डिपार्टमेंट के लोगों को बोर्ड में सिद्धांत किया गया कि इंजीनियर को लाइट लगाने के लिए बोल दिया गया, और पीने का पानी भी जो है ठीक समय पे उस इलाके में पहुँच जाए, ये बोर्ड में डिस्कस हुआ है। देखा गया कि भाजपा के पार्षद ने कहा है कि आज की मीटिंग को बुलाने में कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि देखिए जो लोग बोले हैं क्या बोले उनको पहले म्यूनिसिपल एक्ट जान लेने होगा। ये भी एक चेयरमैन साहब का प्रस्ताव आया है कि इस बोर्ड में बहुत सारे लोग चाहे वो किसी दल के हो फर्स्ट टाइम निर्वाचित हो क्या, इसलिए काउंसलर बोर्ड मीटिंग और काउंसलर का फंक्शनिंग के बारे में जो जानकारी के लिए एक तो नगर निगम की तरफ से वर्कशॉप कर दिया जाए, ताकि किस तरह से चिट्ठी किया जाएगा, बोर्ड मीटिंग में कौन सा सवाल उठाया जा सकता है, बोर्ड मीटिंग में सवाल देने का क्या समय होगा, एजेंडा से बाहर बोलने के लिए क्वेश्चन देने पड़ता है तो क्वेश्चन का देने का टाइमिंग क्या है, ये तमाम बात का जानकारी काउंसलर को। हमारा बहुत सारा छोटा भाई लोग आया है, साथी लोग आया है किसी भी दल से, तो उनको कुछ जानकारी में नहीं है। उनको उनके सीनियर जिस तरह से सिखा के भेजे है वो यहाँ पर हंगामा चिल्ला चिल्ली करके बोर्ड से निकल सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन कॉरपोरेशन का बोर्ड मीटिंग काउंसलर बोर्ड का मीटिंग होता है, वो कोई MIC चेयरमैन के लिए मीटिंग नहीं होता, वो पूरे काउंसलर का। हमारे सब काउंसलर थे, बोर्ड मीटिंग काउंसलर बोर्ड मीटिंग था, बोर्ड मीटिंग हो रहा था काउंसलर का। और ये जो लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, उनको म्यूनिसिपल एक्ट का आइन जान लेना होगा। आज के बोर्ड मीटिंग में देखिए रेल पार के लिए माइनॉरिटीज़ इलाके में रमज़ान का महीना चल रहा है। कल मैंने अलविदा का दिन गया, लोगों को गुस्ल करने में दिक्कत हो रहा है, पीने का पानी, नहाने के लिए, वज़ू करने के लिए लोग मैंने परेशान हाल है। और इतनी परेशानी है जो मैंने बयान से बाहर है। मेयर साहब को बार बार मैंने यकीन दिला रहे हैं कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो इसको सॉल्व करेंगे। हमने ये भी कहा कि आपने एक ये कर दिया कि भाई तमाम मशीन हटा दीजिए। अरे मशीन लगाना कौन चाह रहा है? किसको इलेक्ट्रिक का खर्च देना पसंद है? आप पानी गिरा दीजिए ना, हर कोई हटा लेगा। तो सवाल है कि पानी गिरेगा ही नहीं तो मजबूर आदमी करेगा क्या? तो इसी यकीन दहानी कराया है मेयर साहब ने कि हम लोग पूरे लगे हुए हैं कोशिश में, तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जल्द से जल्द सॉल्व हो मसला। देखिए बोर्ड मीटिंग में 4 तो एजेंडा था, मगर मेरा अहम एजेंडा जो हम लोग था रेल पार में साफ़ सफाई नदी का, वो उन्होंने बोला है GCP लगा करके साफ़ सफाई किया जाएगा। तो हमने बोला कि जंगी पैमाने पे साफ़ सफाई, तो पानी आ जाएगा, बरसात का पानी आ जाएगा तो साफ़ सफाई नहीं हो पाएगा, तो बहुत उस ढंग से ही काम होगा। और दूसरा पानी का तो 1 नंबर में एजेंडा था। जल का समस्या में हम लोग का कांग्रेस का पार्षद गुलाम सरवर लड्डन जी ने एक लेटर दिया था RTI के द्वारा जानकारी करने को, उन्होंने भी उसको भी बात को रखा गया। यही सब मुद्दे पर चर्चा हुआ। मेरा नाम SM मुस्तफ़ा, वार्ड नंबर 25 का काउंसलर। शुक्रवार को आसनसोल के GT रोड के किनारे स्थित सेंट मैरी क्वालिटी स्कूल के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। वह महिला अपने दोनों जुड़वा बच्चों को स्कूल से लेने आई थी कि उसे सड़क पार करते हुए एक बाइक ने टक्कर मार दी। जब वे सड़क पर गिर गई तो उस पर एक वाहन चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके खिलाफ शनिवार को भी स्थानीय लोगों और अभिभावकों का प्रदर्शन जारी
रहा। भाजपा नेता दिलीप देव, भुगू ठाकुर आदि भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से कल उस गर्भवती महिला की मौत हुई वे दुर्भाग्यजनक है। उनका कहना है कि स्कूल के सामने इस तरह के हादसे होना काफी चिंता का विषय है, क्योंकि स्कूल से आज छुट्टी होने स्कूल में प्रवेश करने के समय बच्चे आते जाते रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर यातायात व्यवस्था को और सुचारू करने की जरूरत है। दिलीप देव ने इस घटना के लिए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। কালকে আমাদের স্কুলের একজন গার্জেন এখানে রাস্তায় যখন ক্রসিং হচ্ছে পুলিশের বাচ্চাকে আনতে যাচ্ছে, তখন পুলিশের সামনে কি করে বাচ্চার অভিভাবকের ইয়ে হয়, মৃত্যু হয়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, মারা যায়। এই যে এখানে আমাদের সিসি ক্যামেরা নেই, পুলিশের ট্রাফিকে ভালোভাবে কাজ করছে না, ট্রাফিক পুলিশ নেই এখানে, তারপরে এখানে ব্রেকার নেই, এগুলো যে পার্কিং নেই, এগুলো পার্কিং নেই। আর বারবার যে অ্যাক্সিডেন্টটা হচ্ছে, বাচ্চাদের যে দায়িত্বটা কে নেবে? যার ঘরের অভিভাবকরা মারা যাচ্ছে, যার বাচ্চার সুরক্ষার দায়িত্ব কে নেবে? পুলিশ কোথায় থাকে ওই সময়? তখন সেই সময় পুলিশ কি ঘুমিয়ে থাকে? সুলেখা মাহাতো কেন এখানে এসছেন আজকে, কি ব্যাপার? খবর পেলাম সকালবেলাতে যে কালকে এখানে গীতা সাউ বলে এক ভদ্রমহিলা, সে প্রেগনেন্ট ছিল, তাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং সে মারা যায়। তো এখন এখানে আমি এসে যেটা বুঝলাম, পুলিশ কাউকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। তো পুলিশ বলছে যে যার গাড়ি, সেই গাড়ির নাম্বারটা নাকি আবছা আছে। তো পুলিশ এখন যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করা দরকার আছে। আর এইখানে ট্রাফিকের ব্যবস্থা থাকে, এখানে কি করে অ্যাক্সিডেন্ট করে? এটা পুরোপুরি প্রশাসনের ফল্ট আছে। আমরা এটা যাতে ওই পরিবার যাতে বিচার পায়, আর তার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি। আর তা নাহলে এখানে কিন্তু এই যে স্কুলের সামনে আমরা জনগণকে নিয়ে, এখানকার যারা গার্জিয়ান আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এখন শোনা যাচ্ছে যে ওই পরিবারকে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, লিখিতভাবে দেওয়ার। কিন্তু মেন হচ্ছে যে কালপিট যে অ্যাক্সিডেন্ট করলো, এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা, এখানে পুলিশ ফোর্স থাকে, এখানে ট্রাফিক থাকে, সে কেন এখন অ্যারেস্ট হলো? সেইটা আমাদের প্রথম প্রশ্ন আছে, এইটা আমরা দাবি করছি আমরা। ঠিক আছে, कल इस जगह पे ट्रैफिक का लापरवाह के कारण एक महिला जो गर्भवती थी उसे किसी गाड़ी ने मारकर चला गया, और इसी का प्रतिवाद में हम लोग आए हैं स्कूल में, सरकनेरी गोरटी स्कूल में। पुलिस और स्कूल का प्रशासन मिलकर दोनों ऐसा एक उपाय सोचे कि यहाँ दुर्घटना ना हो। कारण हमने पुलिस से, अगर यहाँ ट्रैफिक का व्यवस्था सही से रहता वो बेचारी अभी जीवित रहती। 2 बच्चे की माँ है, एक तो गर्भवती थी और 2 बच्चा भी है। वो बच्चा तो अनाथ हो गया। इसी की वजह से हम लोग एकत्रित हुए हैं, सभी स्कूल के प्रतिनिधि, जो गार्जियन है, जो जिसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सभी को उपस्थित हुए ताकि उस महिला को और न्याय मिले और यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो। आज पूरे पश्चिम बंगाल में बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड की परीक्षा हुई। इसी क्रम में रानीगंज में भी टीडीबी कॉलेज और रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में ज्वाइंट एंट्रेंस के परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसे देखते हुए दोनों ही कॉलेज के सामने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। आज की परीक्षा में 650 परीक्षार्थियों के परीक्षा देने की बात थी, लेकिन परीक्षा केंद्र में 500 के करीब परीक्षार्थी ही पहुंचे। कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, मैं हूँ जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के टीटीबी कॉलेज पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 2 पार्ट पे
किया जा रहा है। जो 11 से 1 और 2 से 4 तक का यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। यहाँ पे जो बच्चियाँ या बच्चे जो पढ़ने आए हैं, यहाँ पे जो एग्ज़ाम देने आए हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम किया जा रहा है। किस तरह यहाँ पे एग्ज़ाम की जा रही है और उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे और इन बच्चियों से भी बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। आसानसोल टाइम्स न्यूज़, मैं जाहिद अनवर। हार्ड था और अगर प्रिपरेशन होता तो फिर पक्का निकल जाता। अब फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा एग्जाम के लिए था प्रिपरेशन हम सेल्फ किए थे और बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे थे। अच्छा क्या लगता है एक्सपेक्टेशन क्या मार्क्स तो अप्रॉक्स 60 से 70% आ सकता है। कट ऑफ पार हो सकता है। क्या नाम हो? क्या नाम आप आशीष। कहाँ से आए? गोरखपुर। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 मतलब कहाँ से, कौन सा मतलब स्टेट से आए, कहाँ से आए आप? हम तो बिहार से हैं। बिहार से। अच्छा मतलब क्वेश्चन पैटर्न कैसा था, क्या पार्ट में एग्जाम हुआ, कितना पार्ट में? 2 पार्ट में एग्जाम हुआ, एक मैथ का और दूसरे में फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अच्छा मैथ का जो एग्जाम हुआ उसमें टोटल कुल मिला क्वेश्चन पेपर कितना का था? मतलब 75 क्वेश्चन से 100 मार्क्स और 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। अच्छा सेकंड पार्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ। इसमें कितना मार्क्स था टोटल? इसमें टोटल 100 मार्क्स था, 18 टोटल क्वेश्चन। क्वेश्चन पैटर्न कैसे हम लोग तैयारी कोचिंग नहीं में कैसा था, सॉल्व था या मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन चॉइस या कुछ भी? सॉल्व था मतलब प्रोसेस और फिजिक्स केमिस्ट्री में। अच्छा मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे लिए थे? मैं तो ऑनलाइन लिया था। ऑनलाइन एग्जाम का प्रिपरेशन। अच्छा यहाँ जो अभी मतलब आप लोगों का जो सेंटर पड़ा इसमें एग्जाम देते वक्त कितना सुविधा मिला, कुछ असुविधा हुआ क्या? नहीं कोई असुविधा नहीं हुआ, बढ़िया था, सब बढ़िया था। अच्छा इसमें कितना नंबर मिलने से मतलब आपको दूसरा मतलब पास आउट हो जाओगे इसमें सिलेक्ट? कॉलेज वहाँ से बीटेक कर पाएंगे हम लोग। इंजीनियरिंग की पढ़ाई। क्या नाम हो आपका? आदित्य कुमार पांडे। कहाँ से आए? मैं तो हूँ बिहार से, लेकिन आसनसोल में मैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम आपने दिए हैं आज कानूनी टीडीबी कॉलेज में, मतलब कैसा एग्जाम हुआ? एग्जाम इजी था, मैथ्स पेपर थोड़ा लेंदी था, केमिस्ट्री इजी था और फिजिक्स? फिजिक्स भी ठीक थी। अच्छा मैम टोटल मार्क्स कितने का था? 200 मार्क्स। अच्छा मैथ में कितना था? 100 मार्क्स। अच्छा मल्टीप्लिकेशन चॉइस था क्या मैथ में? हाँ मल्टीपल। और इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री में? उसमें मल्टीपल चॉइस। अच्छा मतलब अच्छा प्रिपरेशन कैसा था आप लोग एग्ज़ाम देने का पहले तैयारी कैसे किए थे? कोई कोचिंग वगैरह या घर तो घर पे किए थे। कोई टीचर से या? हाँ टीचर से, ट्यूशन टीचर, मेरे भैया बनाता है। अच्छा कितना मार्क्स एक्सपेक्टेशन है आपका अभी? अभी तो कुछ इसके बाद पास आउट यहाँ से जब सिलेक्टेड हो जाओगे तो उसके बाद आपको मतलब किस चीज़ में होगा क्या? हाँ मार्क्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगा तो इसके बाद? इंजीनियरिंग। आपका नाम कहाँ से है? हम जमशेदपुर से। क्या नाम है? आसनसोल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से रविंद्र भवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में आसनसोल के प्रख्यात व्यवसायी सचिन राय ने बताया कि आसनसोल वेलफेयर सोसाइटी हमेशा इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, लेकिन पिछले 2 सालों में इन कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का नाम गान मेला है। इसमें आसनसोल के सभी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और कोलकाता से भी नामी ग्रामी कलाकारों ने आकर इसमें शिरकत की है। इसका मकसद आसनसोल के सांस्कृतिक मानचित्र को और ऊपर ले जाना है। आसनसोल वेलफेयर सोसाइटी के प्रोग्राम এটা যে দুদিনে গানের মেলা, বাংলা গানের মেলা, যত আসানসোলের শিল্পী আছে তারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে এবং এই গানের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির যাতে বিকাশ ঘটে এবং এই কোভিডের সময় গান বাজনা যত সমস্ত কালচারাল প্রোগ্রাম সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছিল, আবার যাতে তাদের সেই শিল্পীদের উৎসাহিত করা হয়, একটা প্রস্তাব করা হয়, তার জন্য গান মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে সমস্ত আসানসোলের সমস্ত গানের শিল্পীরা রয়েছে এবং কলকাতা থেকেও নামি দামি শিল্পী এখানে অংশগ্রহণ করবেন। দুজনে বহু নামি দামি শিল্পী আছে যারা জি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, তারাও আসবেন এবং আসানসোলের সমস্ত শিল্পী এই গান মেলায় অংশগ্রহণ করবেন। থ্যাংক ইউ। शनिवार को आसनसोल नगर निगम की तरफ से मुर्गा साल के ईदगाह हाई स्कूल प्रांगण में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि हर साल नगर निगम की तरफ से इस तरह की इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में
कोरोना के कारण ये आयोजन स्थगित रखे गए थे। इस साल फिर से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम हमेशा हर त्योहार को इसी तरह मिलजुल कर मनाने और आपस में भाईचारा फैलाने के लिए प्रयासरत रहता है। वहीं वरिष्ठ टीएमसी नेता रविउल इस्लाम ने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 साल स्थगित रखने के बाद फिर से इस साल इस आयोजन को किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब काफ़ी खुशनसीब हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की प्रचंड गर्मी से आसनसोल वासियों को रूबरू होना पड़ रहा था, इफ्तार पार्टी के दिन कुदरत की रहमत हुई और मौसम काफी ठंडा हो गया। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से सभी धर्मों के त्योहारों को मिलजुल कर मनाने का निर्देश देती हैं, उसी क्रम में आसनसोल नगर निगम भी सिर्फ इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि हर धर्म के हर त्योहार को धूमधाम के साथ मनाता रहा है। रविउल इस्लाम ने कहा कि आसनसोल सहित राज्य के विभिन्न नगर निगमों में भी इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं इफ्तार पार्टी में शिरकत करने आए एक रोजेदार मोहम्मद अमर ने कहा कि सभी रोजेदार खजूर के साथ अपना रोजा खोलते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के फल, चने और अन्य पकवानों के साथ साथ अपना रोजा तोड़ते हैं और ये सारा इंतजाम आसनसोल नगर निगम द्वारा किया गया है। आज आसनसोल कॉरपोरेशन की तरफ से इफ्तार का इंतजाम किया गया है। हर साल किया जाता है। कोविड के ज़माने में जो महामारी था, सभी लोग जानते हैं कि कोविड के ज़माने में हम लोग नहीं कर पाए थे। कोविड से महामारी से निकल करके हम लोग इन साल पहली बार फिर जो है इफ्तार का इंतज़ाम किए हैं। अल्लाह से दुआ गो है कि इफ्तार की जो रहमत और बरकत है, इससे माहौल खुशगवार हो और ईद की जो खुशी हम लोगों के सामने ईद उल त्योहार है, ईद को मुबारकबाद हो और ईद की जो खुशियाँ इस तरह से तमाम लोगों को हर खुशियाँ नसीब हो, हर दिन हो और हम लोग फिर आगे बढ़ें। आसनसोल नगर निगम हर साल हमारे यहाँ पर ईदगाह के जो मैदान है, यहाँ पर हम लोग इफ्तार पार्टी इफ्तार कर रहे हैं। इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आसनसोल नगर निगम से हम लोग नजूल मंच में भी इफ्तार पार्टी किए थे। उससे पहले हमारे जो पुराना बस स्टैंड है, वहाँ पर भी हमारे इफ्तार पार्टी हुआ था। तो बीच में 2 साल कोविड-19 कारण के लिए हमारे इफ्तार पार्टी नहीं हो पाए, लेकिन आसनसोल नगर निगम हर साल जिस तरीक़े से हम लोग ये इफ्तार पार्टी करते रहे, हम लोग आने वाला दिन में भी करेंगे। और हम लोग ये बात देखे थे कि आसनसोल मुर्गा साल में जो ईदगाह के मैदान है, ईदगाह कमेटी हमारे नगर निगम को देते हैं ये मैदान यूज़ करने के लिए इफ्तार पार्टी। और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि पिछला 25 दिन 27 दिन आज 28 रोज़ा भी हो चुके हैं। जितना भी दुनिया के रोज़ेदार हैं, सब ने अल्लाह ताला से यही गुजारिश करते रहे, यही दुआ मांगते रहे कि अल्लाह इतना गर्मी में कम से कम थोड़ा हवा दो, पानी दो। और देखिए अल्लाह ताला का क्या रहमत है, कल से पानी भी शुरू हो गया। आसनसोल में आज पानी भी हो रहा है। हो सकता है ये पानी के लिए, बारिश के लिए हमारे इफ्तार पार्टी में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन जिस तरीक़ा से गर्मी हुआ था, ये गर्मी को हटाने के लिए ये भी हम मान जाएंगे, बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये जो मौसम जो ठंडा हो गया, ये ठंडा ठंडा मौसम हमारे आसनसोल नगर निगम को ये इफ्तार पार्टी को और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत कर दिया। आसनसोल के हर इंसान को हमारे यही गुजारिश है कि आसनसोल नगर निगम जिस तरीक़े से आपका हर काम में आपका साथ रहते, आपका साथ रह देते हैं। ममता बनर्जी जो हमारे बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी का एक ही बात कहना है कि हम बंगाल के हर आदमी के साथ हैं, हर आदमी के साथ हर काम, हर त्यौहार में हम हैं। दुर्गा पूजा बोलिए, छठ पूजा बोलिए, गुरु नानक का जन्मदिन बोलिए, हर चीज़, ईद बोलिए, बकरीद बोलिए, हर जगह में रामनवमी बोलिए, हर जगह में ममता बनर्जी का सरकार आम आदमी के साथ रह के काम करते हैं। आज बंगाल के हर जगह में कलकत्ता कॉरपोरेशन बोलिए, सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन बोलिए, आसनसोल कॉरपोरेशन बोलिए, जहाँ जहाँ हमारे ये ममता बनर्जी का ये हमारे सरकार की वोट चल रहा है, हर जगह में हम लोग ऐसा इफ्तार पार्टी भी कर रहे हैं। जहाँ पर जहाँ जिस तरीक़े से ज़रूरत है ये काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले आसनसोल नगर निगम बधाई देना चाहता है हमारे बंगाल के सीएम हमारे दीदी ममता बनर्जी को।
साथ साथ हम लोग बधाई देना चाहूँगा आसनसोल के तमाम इंसानों के कि जो हर साल हम लोग के साथ रहते हैं और इस इफ्तार पार्टी को बहुत अच्छा तरीक़ा से कामयाब बनाते हैं। इफ्तार पार्टी होने को जा रहा है, इसमें माने इफ्तार खोलने का जो आइटम होता है उनका क्या व्यवस्था रखते हैं? देखिए, पहले तो रोज़ा खोलने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो खजूर के साथ रोज़ा खुलेगा और बाकी सेब है, बनाना है, अंगूर है, संतरा है और फिर घुगनी, चौप, चना जो सब चलता है। साथ में नान है, दलीम है और अमूल कूल ठंडा पानी का भी इंतज़ाम किया गया है। कॉफ़ी के साथ सभी लोग अफ्तार करें और एंजॉय करें। कारपोरेशन की तरफ से ये अफ्तार का इंतज़ाम किया गया है। अब अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद उमर।